हे गाइस, वेलकम बैक टू नुपुर's व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ रेडियो समिट। तो इट विल बी फन। बहुत सारे आरजेज आएंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे भी निकलना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। सो सी यू। तो आज हम जा रहे हैं लोधी रोड रेडियो समिट के लिए। अभी बहुत सारे आरजेज आएंगे। आप कुछ कह रहे हैं? तो हम वहाँ जाके ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गाइस, अभी हमने ट्रेन देखी। As you all can see. We are eating grapes, जो मैं अपने घर से लेके आई हूँ। सेंटर बनाना चाहिए कि कम से कम जितना साइक्लोन आए वो एक सेफ रहेंगे। अभी अपील करने की जरूरत नहीं है। आम का सीजन चल रहा है, हर एक के घर में आम होंगे। आपके अंकुर भाई, आपने भी आम अच्छा खासे खाए होंगे, हम सब ने आम खाए हैं। हमने लोगों से गुठलियां मांगना शुरू कर कि उसका एक तरीका बताया हमने अपने सोशल मीडिया के जरिए। Responsive future where radio remains a powerful tool for awareness, adaptation and action. Moving on to the much awaited inaugural session, it is my honor and privilege to invite our distinguished guests for the day, Mr. Sanjay Jaju, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. Dr. Pragya Paliwal Gaur, Director General, All India Radio and News Service Division. Dr. Benno Boyd, Chief, Natural Sciences Unit, UNESCO. Mr. K.N. Srivastav, Director, IIC. And Mrs. Archana Kapoor, Founder Director, The Radio Festival. Sanjay Jaju, a 1992 batch IAS officer, brings a wealth of experience in governance, technology and infrastructure development. And community radios, our fellow radio stations and executive council members of the Community Radio Association and other bodies and other media bodies that are present here. It is my pleasure to welcome you all to the celebration of a platform for dialogue, deliberation, innovation and reaffirming our collective commitment to public service. This year, UNESCO announced the theme of the World Radio Day as Radio for Climate Change. We have taken the liberty to expand this title and this occasion to talk about AM, FM, radio. The airwaves of All India Radio, and actually announce that this is All India Radio. We now bring you a special broadcast on the eve of independence. Moments later, the entire nation listened as our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru delivered his iconic Tryst with Destiny speech. His words at the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India may awake to life and freedom, but carried across the country through the magic of radio. And we are sincerely working for that. And as was mentioned by Pragya ji a short while ago, that the climate change we have already started witnessing everywhere. No part of the globe has remained unaffected now from climate change. The forest fires of California recently devastated. Not only the forest, also several people were rendered homeless. Very important, because that's what we are talking about. Welcome to the World Radio Day 2025 celebration. I'm grateful to the Ministry of Information and Broadcasting and Prasar Bharati for partnering with UNESCO on this special occasion. 2025 obviously is very important, not just because what you just said, that the US withdrew again from the Paris Agreement, but also we only have 5 years left until the SDGs should be concluded, and they will not be concluded. गाइस, यहाँ पे फाउंटेन भी है बहुत सुंदर।
आई रियली लव दिस फाउंटेन। अभी हम लंच करने के लिए बाहर आए हुए थे, अभी 1 बजे हमारा दोबारा शो होएगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ज़्यादा नहीं, डोंट्स पे बड़ा फोकस करना पड़ता है। और जब हम ये चीज़ें सुनते हैं ना, मैं सीधा यहीं पे आना चाहता हूँ, स्किपिंग एवरीथिंग। जब हम ये चीज़ें सुनते हैं, मैं 5 बजे जब शो करता हूँ, माई शो इज़ लाइव शो। जैसा मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसा ही बोलता हूँ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, बटन दबा के हम बोलते हैं। जब एक गाना चल रहा होता है ना कि कहाँ से तू थिंक और समथिंग वैसा वैसा तू सिक, तो थोड़ा खुद को भी लगता है कि यार क्या चल रहा है, क्या गाने हैं, क्या चला रखे हैं। वो कहते हैं कि आपके शो में चलेंगे ही, लोग डिमांड ही यही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा चल रहे हैं इंस्टाग्राम की रील जिनके व्यूज़ आ रहे हैं। तो हमारा ये थोड़ा टारगेट होता है, ये हमारी जॉब है। हम पर्सनली अपनी तरफ से कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि किस चीज़ को आपको बोलना है, किस चीज़ के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। स्टेशन मैनेजर मधु भट्ट थी, वो स्टेशन मैनेजर रही हैं 5 साल। तो मतलब सारा सिस्टम में जो चीज़ें हैं उनको भी उतना ही पूरा स्पेस मिला हुआ है। और प्रोग्रामिंग में भी क्या है कि जो उत्तराखंड में जो परसेंटेज है आप देखेंगे तो गाँव में महिलाएं ही अधिक हैं, क्योंकि अधिकतर जो पुरुष हैं या तो पलायन के कारण शहरों में, या तो लिसनर भी फील्ड में जो हमारे प्रोग्राम बनते हैं बहुत सारे जो, तो उसमें प्रोग्रामों में भी जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का अधिक है, क्योंकि बातचीत ही उन्हीं से होती है। गांव में खेती को लेके, पशुपालन के लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, उसको भी हेड हमारी लेडी ऑफिसर ही कर रही हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है। इसके अलावा मुझे लगता है हमारा जो पूरा इंटायर नेटवर्क है उसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, बल्कि मैं तो कहूँगी अर्चना जी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ही ज़्यादा है। रीज़न उसका ये कई मरतबा मैंने महसूस किया। देखिए मुझे 36वां साल चल रहा है ये ब्रॉडकास्टिंग में, और मैं जब छोटी सी बच्ची थी तब मैं बच्चों के कार्यक्रम में नन्ही सी गई थी आकाशवाणी में, मेरे पिता भी रेडियो में थे, और तब से मैं गई हूँ। और आज इस उम्र के इस दौर में मुझे लगता है इतने सालों में लगभग 5 दशक से भी ज़्यादा हो गए, आकाशवाणी जैसा सेफ वर्क एनवायरनमेंट मुझे कहीं नहीं दिखता। जो मैंने अपनी बना के सुनाई, कारण जब आपके सामने वाले को लगता है आप उसी चीज़ से गुजरे हैं तो वो आपसे कनेक्ट ज़्यादा कर जाता है और आपकी बात ज़्यादा समझ पाता है। दूसरा कि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो उसमें LGBT कम्युनिटी भी आ जाता है, जिसकी कन्वर्सेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम एक नई लड़ाई 100 साल बाद शुरू करें एक अलग समुदाय के लिए और फिर हम रीस्टार्ट करें। तीसरा चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल एक बातचीत है बहुत छोटी सी, जब शब्दों की बातचीत हुई, मैंने आज तक ये बात नहीं कही कि मेरे पिता हैं और मेरा भाई है इसलिए मैं कोई छेड़खानी नहीं करती लड़कों के साथ। मुझे पता है ये गलत है, वो अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में अच्छे से। अब आती है बात की जब आप बाहर जाते हैं तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं। समुदाय के बहुत लोग बैठे हैं, ज़्यादातर लोग, जैसे एक नाटक के बाद एक व्यक्ति ने बोला कि आप खुद तो जीन्स, मतलब आप हमारी लड़कियों को भड़का रही हैं जीन्स पहनने के लिए, शर्टें पहनने के लिए। तो हमारा उनको जवाब दिया कि पहले आप धोती पहन के आओ, फिर आप बात करना कि भारतीय संस्कृति आप फॉलो, क्योंकि बहुत बायसनेस है। कह गए ना कि हम इज्जत करते हैं और इज्जत करने में बहुत फर्क है। इज्जत करना बहुत एफर्ट मांगता है। हम कहते हैं हमारे घर में बेटी और बेटा बराबर है, पर जब पढ़ाई का पैसा बचता है, एक बच्चे की पढ़ाई का अगर पैसा है आपके पास मास्टर्स कराने का, ग्रेजुएशन कराने का, तो वो बेटे की पढ़ाई में लगता है क्योंकि दिमाग कैलकुलेट करता है कि ये तो मेरे साथ रहेगा। इनइक्वालिटी बहुत स्तर पर है कि अगर मैं और ये एक ही घर में पैदा हुए हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं बहन हूँ, तो मुझे विदा कर दिया जाता है और एक बिल्कुल अलग समुदाय छोड़िए, एक औरत तो उसके समुदाय तो अक्सर बदलते हैं उसके जीवन में। बाहर का सीन है और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लाइक गाइस। तो अब मैं घर जा रही हूँ, वहाँ से हम सब फ्री हो चुके हैं। शो अच्छा था, लाइक जो भी था, इट वाज नाइस। लाइक वहाँ पे RJs आ रखे थे, पूरा रेडियो समिट था
इतने सारे आरजेस आ रखे थे, हमें कुछ सीखने को मिला, तो इट वॉज रियली नाइस। अभी तो 5-6 बजे हैं, मुझे लगा था कि हम 5:30 बजे तक फ्री होएंगे, बट फिर हम जल्दी फ्री हो गए हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर।